ویلکم کرتی ہوں کلام کے لیے کہ وہ خداوند کے زندگی بخش آئے کلام سنائے ہمیں، اور یہ زندگی بخش کلام ہماری زندگیوں کو بدلنے والا کلام بنے۔ سسٹر جی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ God bless you. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں ڈاکٹر عرفان اینڈ ملیحہ کی طرف سے آپ سب کو شالوم، اور سسٹر سونیا آپ کی بھی شکر گزاری کرتی ہوں میں کہ آپ نے مجھے بہت رسپیکٹ سے انوائٹ کیا۔ یہ سارا عزت و جلال ہمارے خداوند کو جاتا ہے جو ہم بے وجودوں کو چنتا اور اپنے نام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آمین، اس کا شکر کرتے ہیں۔ تھینک یو بردر عاشر اینڈ سسٹر سونیا اس بلیسڈ ورشپ کے لیے اور بابرکت دعا کے لیے۔ آئی ایم تھینکفل ٹو یو بوتھ آف یو۔ خداوند آپ دونوں کو بہت برکت دے۔ اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج جو بات ہم سیکھیں گے وہ ہے ہاؤ ٹو انٹر گاڈس تھرون روم۔ خداوند کا جو پاک تخت ہے، خداوند کا جو تھرون روم ہے، جو خداوند کا پاک تخت ہے، وہاں پر ہم کیسے انٹر ہو سکتے ہیں اور ہم کیسے انٹر ہوتے ہیں، ان سٹیپس کو ہم آج دیکھیں گے۔ اور میں اپنے آپ کو خدا پاک روح کے تابع کرتی ہوں تاکہ خداوند آج کثرت سے اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو بلیس کرے۔ آمین۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو انٹر گاڈس تھرون روم آف ہیون۔ خداوند کے پاک تخت میں کے سامنے ہم کیسے انٹر ہو سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ خداوند یسوع مسیح کی ریویلیشن ملتی ہے، کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کا جو انجام ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ محبت ہے شریعت کا انجام، اور شریعت کو تکمیل تک پہنچانا خداوند یسوع مسیح اس کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے تھے۔ اور کلام مقدس میں ہر ایک بات میں، ہر ایک سٹوری میں، ہر ایک کیریکٹر میں جسے بھی خداوند نے چنا، ہمیں یسوع مسیح کی تصویر ضرور وہاں دکھائی دیتی ہے۔ اور بہت سارے ایسی ٹائپس ہیں جو فور شیڈوئنگ تھنگس ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، اور وہ فور شیڈوئنگ تھنگس ہیں دیٹ شوز واٹ ہیپنز ان دا فیوچر۔ فار ایگزامپل اگر ہم پیس اوور دیکھیں تو پیس اوور کے وقت خداوند نے یہوہ پاک خدا نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا جب قوم بنی اسرائیل جو ہے، جب اسرائیلائٹس جو ہیں وہ ایجپٹ سے نکلے تھے، تو خداوند نے اس پیس اوور کو وہاں اسٹیبلش کیا تھا۔ دیٹ از آلسو دا پکچر آف فور شیڈوئنگ آف جیسس کرائسٹ، کہ خداوند یسوع مسیح فیوچر میں ہمارے لیے کیا کرنے والے ہیں، that he would become the spotless lamb of God، اور وہ ہمارے لیے سلین ہوا، اس نے اپنا لہو بہایا ہماری نجات کے لیے، بلکہ پوری دنیا کی نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کو بہایا، وہ بے عیب برا، جو آپ کی اور میری نجات کے لیے، ہماری خلاصی کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے، ہماری رہائی کے لیے، ہماری ریسٹوریشن کے لیے وہ بے عیب برا جو ہے وہ سلین ہوا تھا۔ آمین۔ اور کلام مقدس میں آج ایسی ہی ہم ایک فور شیڈوئنگ پکچر دیکھیں گے۔ آستر کی کتاب میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ آستر کی کتاب میں ہم کس طرح اس تھرون کو دیکھیں گے کہ خداوند کے پاک تخت کے سامنے ہم کیسے جاتے ہیں۔ اور جب آپ اور میں، ہم خداوند کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں جسے اس نے ایک ایکسس دیا ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور ہم اس کی پاک حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں جب تک وہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ ایک اپوائنٹڈ ٹائم تک خداوند کی پاک مرضی کے مطابق اور پاک روح کی گائیڈنس کے مطابق ہم ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے آستر کی کتاب، دا بک آف ایسٹر، اس کا چیپٹر 5 باب اور اس کی ورسز 1 to 3 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ کے اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر قیصر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے یہ سنہرا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا، تو آستر نے نزدیک جا کر
आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरख्वास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। और यहाँ पर फ्यू स्टेप्स हमें नजर आते हैं जो हमें रिवील करते हैं, खुदावन एक रेवलेशन देता है और हमें ब्लेस करता है इसके वसीले से कि किस तरह एक शाही महल में हमें एक पिक्चर दिखाई देती है कि किस तरह हम भी खुदावन की पाक हुजूरी में एंटर होते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि आस्तर मलका बादशाह के तख्त के सामने जाती, उस शाही महल में जाती, उस रॉयल कोर्ट में जाती, उसने एक प्रेपरेशन की है। और वो प्रेपरेशन ये थी कि उसने 3 दिन का रोजा रखा। 3 दिन का रोजा, हम जानते हैं कि रोजा जो है वो हमें, जब हम खुदावन के चेहरे को तकते हैं और खुदावन से हम चाहते हैं कि वो हमारी दुआओं का जवाब दे, तो हम जरूर फास्टिंग करते हैं। कई बार हम रिवाइवल मीटिंग्स के लिए, कई बार खुदावन से जब हम किसी मिरेकल को तलब कर रहे होते हैं और जब हम चाहते हैं कि खुदावन हमारी दुआओं का जवाब दे, हम किसी के लिए इंटरसीड कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये बिलीवर्स की एक प्रैक्टिस में आता है कि वो जरूर फास्टिंग करते हैं। और यहाँ पर कलाम हमें बताता है कि उसने 3 डेज की फास्टिंग की है इससे पहले कि वो उस रॉयल कोर्ट के अंदर एंटर होती। उसने एक प्रेपरेशन का दिखाते हैं, कलाम में बताता है कि उसने एक प्रेपरेशन यहाँ पर की है उस तख्त के सामने जाने के लिए, और उसने 3 दिन का रोजा रखा। और कलाम मुकद्दस में यहाँ पर जैसे लिखा है कि आस्तर मलका उस महल में, महल के बारगाह में, वहां पर वो जाती है, उस शाही महल में, राइट, रॉयल कोर्ट में जब वो जाती है। इसी तरह हमारा खुदावन आसमानों पर तख्त नशीन है। एक खुदावन का जो रॉयल कोर्ट है, खुदावन आसमानी बाप हमारा यहोवा पाक खुदा। कलाम मुकद्दस हमें बताता है, आस्तर से हम इस एग्जाम्पल को सीखते हैं कि आस्तर जिस बादशाह के पास जा रही थी वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो उसका हस्बैंड भी था। और सेम लाइक दैट हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारा जो बादशाह है, जो हमारा किंग ऑफ किंग्स है, खुदावन यसु मसीह, यहोशुआ हमशिया, और हमारे जो जीसस क्राइस्ट है, वो हमारे किंग भी है और वो ग्रूम भी है, क्योंकि हम सब खुदावन यसु मसीह की ब्राइड हैं। और यहाँ कलाम में आस्तर मलका एक बादशाह के पास, अपने एक हस्बैंड के पास, वो उस शाही महल में एंटर होती है एक बड़ी प्रेपरेशन के साथ। इसी तरह हम भी अपने खुदावन की बारगाहों में एक प्रेपरेशन के साथ हम खुदावन की बारगाहों में एंटर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 17 से 18 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उसका चैप्टर 6 और उसकी वर्सेस 17 एंड 18 में आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और कलाम कहता है कि जब हम रोजा रखें तो हमने फिर अपनी सूरत जो है वो उदास नहीं बनानी। वी हैव टू ड्रेस्ड अप नाइसली, और हम अपने सर में तेल लगाएं। और हम जानते हैं कि ऑयल जो है वो अनॉइंटिंग को जाहिर करता है कि पाक रूह की अनॉइंटिंग आपके ऊपर होनी चाहिए, आप अपने आप को ब्लेस करें। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस में ये बात हमें कलाम बताता है कि अपने सर में तेल डाल, और तेरा बाप जो पोशीदगी में है, जो पोशीदगी में है, देयर इज नो अनाउंसमेंट कि हमने रोजा रखा है। हमारा बाप पोशीदगी में हमारे दिल की सारी बातों को जानता है, और हमारा बाप जो पोशीदगी में है वो हमें फिर उसका अजर देता है और उसका आंसर देता है। बेसिकली जब रोजा रखते हैं तो ये इस बात को जाहिर करता है कि हम कितने सीरियसली खुदावन को सीख कर रहे हैं और कितने सीरियसली हम खुदावन से अपने रोजे को तलब करते हैं, सॉरी अपने आंसर को तलब करते हैं रोजा रखने के बायस। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम मुकद्दस में फिर उसने यहाँ पर वो एक, ये भी बहुत जरूरी है कि खुदा की पाक बारगाह में एंटर होने के लिए वी हैव टू रिपेंट। हमें जब हम इंटरसीड करें या हम
किसी के लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम इंटरसीड करते हैं एक दूसरे के लिए, तमाम मुकद्दसीनों के लिए दुआ करते हैं, अपनी जो भी हमारी नीड्स हैं हम खुदावन की पाक हुजूरी में चाहते हैं। जब तो हम रिपेंट करें और फास्ट करें और खुदावन यीशु मसीह से अपने लिए हम मर्सी को सीख करें, ताकि खुदावन हम पे रहम करे, हमारी गलतियों को माफ करे, क्योंकि हमें बेऐब होके, बेदाग, बेझुरी होकर अपने आप को क्लेंस करके यीशु के लहू की कुदरत से फिर हमें खुदावन की पाक बारगाहों में एंटर होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम मुकद्दस में यहाँ पर एक और बात बड़ी अच्छी लिखी, कलाम कहता है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह में एंटर होती है, और इनर कोर्ट में वो एंटर होती है, और उसका जो लिबास था वो बहुत शहाना था। और कलाम हमें बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू की कुदरत के वसीले से उस रास्तबाजी के लिबास को हमें दिया है, जो उसके लहू से हमने खरीदा है, हम उसके लहू से खरीदे गए हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें वो लिबास दिया है जो रास्तबाजी का लिबास है, उसने हमें क्लेंस किया और एक राइटियसनेस का उसने हमें रोब दिया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से हम सब देखेंगे आयजाया उसका चैप्टर 61 और उसकी वर्स 10। यसाया चैप्टर 61 और उसकी वर्स 10 में लिखा है, हालेलुया, मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए हैं। और ये वो निजात के कपड़े हैं जो खुदावन ने हमें पहनाए हैं, और ये ड्रेस ऑफ राइटियसनेस ही वो एक्सेस है, वो यही वो रास्ता है, और यही वो क्या कह सकते हैं कि एक हमारे लिए एक जरिया बनता है कि हम खुदावन यहोवा पाक खुदा के तख्त के सामने हम जा सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर आस्तर मलका हम देखते हैं कि एक शहाना लिबास पहनकर वो उस इनर कोर्ट में उस बादशाह के सामने वो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि फिर जो थर्ड काम उसने किया वो ये है कि अपने आप को पोजीशन किया है, एक ऐसी जगह पे उसने अपने आप को पोजीशन किया है जहां पर वो नोटिस हो सके। लाइक अब वो महल के दरवाजे पर वहां पर खड़ी है, राइट, महल के सामने वो खड़ी है, और बादशाह अंदर इनर कोर्ट में अपने महल में तख्त नशीन है। और वहां से जब उसकी निगाह उस पर पड़ती है कि आस्तर मलका वहां खड़ी है, उसने अपने आप को एक पोजीशन में ऐसे रखा कि वो नोटिस हो कि खुदावन, जैसे हम ऐसी पोजीशन में अपने आप को रखें कि खुदावन हमें नोटिस करता है जब हम उसके बारगाहों में एंटर होते हैं, और वो हमें नोटिस करता है। और जब हम खुदावन की पाक हजूरी में जाएं और वहां पर हम मौजूद हों, तो वी मस्ट एक्नॉलेज द पावर ऑफ गॉड, कि यहोवा पाक खुदा का हमें जो उसकी कुदरत है उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। और स्टार्टिंग में ही, राइट एट द बिगनिंग, जब हम उसकी पाक हजूरी में एक राइटियसनेस का रोब लेकर, ये बरा के लहू को अपने ऊपर उंडेल कर, और हम खुदावन की पाक हजूरी में जब जाते हैं, हमारा यहोवा पाक खुदा तख्त नशीन है और खुदावन यीशु मसीह भी तख्त नशीन है, और हम वहां जाकर खुदावन के नाम के बड़े बड़े कामों का जरूर बयान करें। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे प्रॉफिट्स ने जितनी भी दुआएं की, अगर आप उसको देखें तो उसमें सिर्फ खुदावन के जलाल की बातें, खुदावन के बड़े बड़े अजीब अजीब कामों की बातें, और सिर्फ खुदावन की इलाही कुदरतों का जिक्र है। और उसके बाद कहीं जाकर दे मेड रिक्वेस्ट। इसी तरह जब हम खुदावन की पाक हज़ूरी में जाए तो वी मस्ट से, खुदावन, वी लव यू, वी अडोर यू, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, यू आर द ऑलमाइटी, यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, यू आर द किंग ऑफ किंग। और हम उसको एक्नॉलेज करें। और ये वो टाइम है, इस तरह जब हम खुदावन को सीख करते हैं तो हमारा खुदावन जरूर हमें राइट एट दैट मोमेंट वो हमें नोटिस करता है। और ये वो पोजीशन है कि हम अपने आप को पोजीशन करते हैं वहां कि खुदावन हमें नोटिस करे, और हम उसकी इलाही जात का इकरार करते हैं, और हम खुदावन के वो जो रास्तबाजी के कपड़े उसने हमें पहनाए हैं उन्हें पहनकर हम खुदावन की बारगाहों में एंटर होते हैं। हालेलुया। और फोर्थ थिंग, इस बात को एक्नॉलेज करना कि खुदावन तख्त नशीन है। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस में भी
आस्तर मलका जब वहां खड़ी थी तो उसने देखा कि बादशाह वहां तक नशीन है, और उसने इस बात को मेंशन किया। उसने इस बात को जब उसने उसको देखा, इट मींस ही नोज कि आस्तर वहां है, और आस्तर ने देखा कि बादशाह तक नशीन है। और कलाम मुकद्दस में से हम एक वर्स देखेंगे, मेरे साथ देखिए साम 47 और उसकी वर्स 8 में लिखा है, हालेलुया, 47 सॉरी यस 47 और उसकी वर्स 8 में लिखा है, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है, खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठता है। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि हमारा खुदावंद वहां पर तख्त नशीन है। दैट्स वाई हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में जाते और खुदावंद से अपनी दुआओं का जवाब जरूर ही हम लेकर आते हैं, बिकॉज खुदावंद हमें नोटिस करता है कि हम उसकी पाक हजूरी में मौजूद हैं। और फिफ्थ थिंग आस्तर ने ये की कि आस्तर को बादशाह की तरफ से फेवर मिलती है, और बादशाह ये जानना चाहता था। अब बादशाह ने जब उसको नोटिस किया कि वो उस पोजीशन पे थी कि बादशाह ने उसको नोटिस किया, और फिर बादशाह उससे सवाल करता है कि उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है, राइट। और इसी तरह हमारा खुदावंद भी, जब हम उसकी पाक हजूरी में होते हैं और हम वी आर जस्ट सीकिंग द आंसर ऑफ आवर प्रेयर्स, तो वो जरूर हमसे पूछता है कि हम क्या चाहते हैं। और खुदावंद, हम कलाम में भी देखते हैं बहुत जगहों पे, जब खुदावंद यीशु मसीह लोगों को हील करते थे तो वो बहुत बार ऐसा पूछते थे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जैसे उस अंधे ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। और खुदावंद ने कहा कि तू देख। खुदावंद, ही इज ऑल नोइंग गॉड, उसको सब कुछ पता है, बट वो चाहता है कि हम बोलें। वो हमसे पूछता है और हम उससे बात करते हैं। दैट इज द राइट वे टू कम्युनिकेट, बिकॉज वो जिंदा यहोवा पाक खुदा है, और जो जिंदा होता है वो सवाल भी करता है और फिर हमसे जवाब भी तलब करता है। और जब हम उससे कुछ पूछते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी दुआओं का भी जवाब देता है। हालेलुया। और इस तरह हम जब राइट पोजीशन पे होते हैं तो खुदावंद हमसे पूछता है कि हम किस लिए यहाँ मौजूद हैं और हमारी रिक्वेस्ट क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं कि 6 उसने जो किया काम वो ये था कि आस्तर को फिर फेवर मिली, बादशाह की नजर में उसको फेवर मिली। और फेवर कैसे मिली? कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी, और बादशाह ने वो सुनहरा आसा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ा दिया। और जब वी ऑल नो के जब वो सुनहरा आसा उसकी तरफ बढ़ाया और जब उसने आस्तर ने उसकी नोक को टच किया, उसने उसको छुआ, तो इट मीन्स के वो चाहता था कि वो अपनी रिक्वेस्ट उसको बताए, अपनी दरख्वास्त उसको बताए। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका तू क्या चाहती है और किस चीज की दरख्वास्त करती है? और फिर यहाँ पर बादशाह ने उससे जब सवाल किया, और हम देखते हैं कि कलाम में आस्तर को उसकी तरफ से फेवर मिलती है, और जिस बात के लिए, जिस पर्पस के लिए उसने ये सारी प्रेपरेशन की, कि उसने फास्टिंग की, उसने रिपेंटेंस किया, उसने अपने आप को राइट जगह पे पोजीशन किया, और उसने ये देखा कि बादशाह तख्त नशीन है, और फिर उसने ये देखा कि बादशाह ने उससे ये बात पूछी कि तू बता के तू क्या चाहती है, और राइट एट दैट मोमेंट उसने उसकी हजूर मतलब अपने बादशाह के सामने उसने अपनी रिक्वेस्ट को रखा और बादशाह ने उसको फेवर दिया। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं साम 47, हालेलुया, सॉरी मेरे साथ देखिए साम 45 और उसकी वर्स 6। साम 45, जबूर 45 और उसकी वर्स 6 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी मेरे से मिस हो गया एक, ये साम है 40
47, यस 47 में लिखा है, 47 में हमें wait a second, yes सॉरी 45 ही है, Psalm 45 और उसकी वर्स 6 में लिखा है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद मुबारक है, तेरी सल्तनत का आसा रास्ते का आसा है। और यहाँ पर भी खुदावन यहोवा पाक खुदावन जो तख्त नशीन है, यहाँ पर भी खुदावन के कलाम में लिखा है कि उसका आसा जो है वो रास्ते का आसा है। यानी कि जब हम खुदावन की पाक हुजूरी में जाते हैं तो वो हमें एक डिवाइन फेवर वहां से मिलती है, क्योंकि उसका आसा जो है वो रास्ते का आसा है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आस्तर की तरफ जब उसने गोल्डन वो जो आसा उसकी तरफ बढ़ाया तो फिर उसको उसके वसीले से फेवर मिली। हालेलुया। और उसने अपनी रिक्वेस्ट वहां रखी। इसी तरह हम भी खुदावन की पाक हुजूरी में जब जाते हैं तो ये इंटरसेशन करना या दुआएं करना ये सिर्फ 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का काम नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको पास्टर्स कर सकते हैं या कोई दूसरे आम बिलीवर्स नहीं कर सकते। ये सारी बरकतें खुदावन ने एक एक ईमानदार को, हर उस शख्स को जिसे उसने अपने खून से खरीदा है और जिसे उसने रास्तबाजी के कपड़े पहनाए हैं, उस हर एक उस शख्स का एक्सेस है कि खुदावन की पाक हुजूरी में वो एक्सेस कर सकता है और वहां जा सकता है और वहां पर अपनी रिक्वेस्ट रख सकता है, इवन वो इंटरसीड कर सकता है। इस तरह की बरकत खुदावन ने हर एक ईमानदार को दी है ताकि हम खुदावन की हजूरी में इंटरसीड कर सकें और लोगों के लिए और अपने लिए भी खुदावन से उसकी जो बरकतें उसने हमारे लिए रखी हैं हम उसको रिसीव कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट वर्स देखेंगे हिब्रू चैप्टर 4 और उसकी वर्स 16, इब्रानियों 4 बाब और उसकी वर्स 16। यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत ठहरे और खुदावन जरूर हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। जो रेवलेशन आस्तर मलका की बुक से आज हमने सीखी कि हम खुदावन के पाक तख्त में के सामने कैसे एंटर हो सकते हैं और अपने लिए मर्सी एंड ग्रेस को खुदावन की हजूरी से रिसीव कर सकते हैं। खुदावन इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। God bless you all. Thank you so much for listening.